If your copy is finished, you have to write your new copy. Got it? Give me your copy. Print it. चलो रीड करो तो यहाँ से. Solids, liquids, and gases. Solid, liquid, gases change of form. Solids are hard to touch. They have a fixed shape. Unless we cut, break, pull, or push them, we can hold them in our hands. They do not fall. Flow. They cannot be poured into containers. Things such as chair, book, and text are solids. Liquid can flow. They do not have a fixed shape. They take the shape of the container into which they are poured. Poured मतलब होता है डालना. Poured. Things like water, oil, and milk are liquids. Gases do not have a fixed shape like liquids. Gases also flow. However, you cannot keep gases in open container. They spread throughout the shape available to them. Gases can be kept only in closed containers. You read carefully. Containers. This also. Encircle the correct answers. Solids do not change their shape. Shape. Solid do not change their shape. Milk. Do not read milk. Wood. Steam is an example of a solid. You read water, only answer. Correct. Water, juice, and oil are example of solids. Examples of solids. Liquid. What I said many times. You read only answer the correct. Example you read from here again. Encircle the correct answer. Solids do not change their shape. Wood stem is an example. Stem कहाँ है पढ़ रहे हैं आप? Wood is. Stem not. Milk wood stem is an example of solid. Example of solid. Water, juice, and oil are example of liquids. We need a container to hold liquids. A solid gas spreads all over. Why you read here solid? Read करो फिर से. हम आपको बता क्या रहे हैं? ये लिखा हुआ है सोल्ट और ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है ना सभी में. उनमें से जो सही है सिर्फ उसी को पढ़ना है. Read again. Encircle the correct answers. Solids do not change their shape. Wood is an example of solid. Water, juice, and oil are example of liquids. We need a container to hold liquids. Gas, liquid, spread
All फिर गैस over. लिक्विड, गैस स्प्रेड ऑल ओवर। यू रीड अगेन। अगर इस बार गलत हुआ ना तो देख लीजिए यहाँ पे। Circle the correct answer. Solid. यहाँ लिखा हुआ Solids ये है do कि सॉलिड डू नॉट चेंज देयर शेप। सॉलिड अपना शेप बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है। यहाँ लिखा हुआ अ गैस स्प्रेड ऑल ओवर। स्प्रेड मतलब फैलना, गैस चारों तरफ फैल जाता है। टर्न ऑन योर वीडियो। Good evening, sir. Turn on your video and sit properly. You are 5 minutes late. Why? Why? You don't have time. Tell me. Sir, वो You don't know your time. सर वो पापा बोल रहे थे दूध पीने को, मैंने बोल रहा था जा रहा हूँ क्लास करे, लेकिन बोले कि पियो, इसलिए लेट हो गया। आप सारा काम पहले कर लेंगे, okay? You finish each and everything, all the work before my time start. At the नो proper 8 प्रॉब्लम o'clock. सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। अप डाउन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। No. Sir, up down. Can I don't know. After up down, can you change your habit? No. So why? Why I do this? Number one. Now you open. Okay, we are done. Sit. Very good. Listen, have you learned all the word meanings? Sentences? यस सर। Okay, tell me. चिल्लाओ मत। डोंट क्राई और या डोंट शाउट। यानी कि इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। डोंट क्राई, डोंट शाउट। ओके? डोंट क्राई का है, डोंट क्राई तो मत रो। क्राई मीन्स चिल्लाना नहीं होता। नेक्स्ट, एक कुर्सी लाओ। ब्रिंग ए चेयर। एक पेन लाओ। ब्रिंग ए पेन। एक बुक लाओ। ब्रिंग ए बुक। एक पेंसिल लाओ अंकित। ब्रिंग ए पेंसिल। ब्रिंग अ पेंसिल अंकित। ब्रिंग, एक समोसा मुझे दीजिए, एक समोसा लाओ। ब्रिंग ए समोसा। एक पैकेट बिस्किट लाइए। ब्रिंग ए वन पैकेट बिस्किट। वेरी गुड। खराब आदतें छोड़ दो। गिव अप बैड हैबिट्स। हमें सभी काम समय पर करनी चाहिए। नहीं पता। यू स्पीक सर, डोंट नो। डो नॉट स्पीक, डोंट, नहीं पता। दूसरे की नकल ना करो। डोंट कॉपी अदर्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, मेरे सर फोन पर बात कर रहे हैं। मेरे सर फोन पर बात कर रहे हैं। माई यस सर इज टॉकिंग ऑन मोबाइल। यस, माय सर इज टॉकिंग ऑन फोन। दादी जी का फोन था। ग्रैंड मदर्स कॉल। वॉज माई ग्रैंड मदर्स कॉल। माई क्यों? मेरे बोले ना सर, मेरे दादी जी का फोन था, तो दादी जी का था तो आप दादी जी को माई नहीं बोलोगे क्या? सर आप तो बोल रहे थे दादी जी का फोन है। ओके, अगर मेरे बोलेंगे तो आपको बोलना है सर, इट वॉज माई ग्रैंड मदर्स कॉल।
Yes, sir. Very good. You write and learn. Now you page number in your science book. Page number 58. Number one question. Which of these is not from form of water? Ice or rubber? Sir, page number? 5858. Yes, sir. Rubber. Very good. Tick on rubber. Next. The air we breathe in is a mixture of, जो सांस हम लेते हैं, mixture of water और gases. Me. Gases. Very good. Next. Page number 59. Encircle the correct answer. Here three options is given. You have to encircle the correct one. जो सही है उसमें से एक सही करना है. Circle करना है. Number one. Solid do not change their shape, smell or color. Call shape. So you circle this shape. Shape में आप circle कर दीजिए. Yes, sir. मैं किया हूँ circle. Next. You speak, sir. I have done. Don't speak. मैं किया हूँ. Second. Milk, wood, stem is an example of solid. Solid. Which one is the example of solid? Milk, wood or stem? Wood. Speak. Wood. Very good. So you encircle wood. Yes, sir. Next. You read third number. Water, juice, and oil are examples of Solid, liquid or gases. liquid. Liquids. Encircle the liquid. Encircle the liquid. Yes, sir. Okay. Next question. You read next question. We need a container to hold papers, liquid, papers, liquid, या chairs. What is right answer? Sir, papers. No, sir, Container liquids. liquid. Yes, yes, yes. So you encircle the liquid. Your right answer is liquid. Yes, sir. You read 5. A solid gas liquid spread all over. स्प्रेड मीन्स फैलना. क्या होता है? फैलना. तो आप बताइए, गैस ज्यादा चारों तरफ फैलता है, लिक्विड या फिर सॉलिड? So gas. Okay, so you encircle the gas. Done. Yes, sir. So your copy. Where is written the summary which I sent the homework yesterday? Copy दिखाइए.
कच्चा हाउस, यस यस, नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज। Not next page, sir. यस यस यस, नेक्स्ट पेज, जिसमें ये ब्रेन मैप कहाँ पे लिखे हैं? Sir, brain map का? यस यस। No sir, brain map नहीं लिखा हूँ। क्यों नहीं लिखे हैं? आप तो बोले थे कच्चा हाउस और पक्का हाउस लिखना है। क्या लिखा हुआ है होमवर्क में? ओपन योर व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में हम क्या लिखे थे? ये सारा पिक्चर का सारा कुछ लिखना है, ईच एंड एवरीथिंग। नीचे का समरी लिखे हैं, हाउस इज प्लेस वेयर वी लिव इन, ये सब लिखे हैं, हरा जो हरा कलर में है। No sir. वो नहीं लिखे। यू स्टैंड अप, इट्स बैड हैबिट, व्हाट आई से। हम उतना सा पिक्चर क्यों हम भेजे थे आपको? आपको जो, यू गॉट इट? Yes sir. ओके, बट टुमारो यू और नेक्स्ट चैप्टर का भी लिखेंगे। Yes. Now you open page number 61. 61. चलिए 61 में आप ओपन कीजिए और देखिए नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यू रीड। चलो आप रीड करो। व्हाट यू डूइंग अंकित? व्हाट आर यू डूइंग? Sir, liquid to gas. पेज नंबर 61, ओपन नाउ। Yes sir. चलिए आप सबसे पहले ऊपर से रीड करो, ऊपर से। सॉलिड लिक्विड इन सभी का वर्ड्स एड जो है ना वो रीड कीजिए आप पहले। Solid, a thing that solid, a thing that has a fixed shape and size. Liquid, a thing that takes the shape of the container into which it is poured. Gas, a thing that has no shape and size of its own. Melting, processes of changing of a solid into a liquid on heating. Improvement, process of changing of a liquid into a gas on heating. नेक्स्ट, ब्रेन मैप। Most materials exist in three forms: solid, table, chair and bed; liquid, milk, water and juice; gas, oxygen, nitrogen and carbon dioxide. लिसन, यहाँ क्या बताया हुआ है? मोस्ट मटेरियल्स एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म। जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म क्या क्या हो गया? टेबल, चेयर, बेड, ये सभी क्या हुए? सॉलिड। गॉट इट? Yes sir. लिक्विड, लिक्विड में क्या हुआ? मिल्क, वाटर, जूस, ये सभी लिक्विड हो गए। ओके। एंड गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, all are gases. You got it? Yes or no? Okay, you read the summary. You read the summary of chapter number. You read summary, green, green, green में जो लिखा हुआ है।
चलिए लिखिए, राइट कीजिए। ग्रीन में जो लिखा हुआ है रीड कीजिए वन बाय वन। इन अ नटसेल इट्स अ समरी ऑफ चैप्टर 8। व्हाट इज दिस इज चैप्टर 8? रीड समरी रीड कीजिए। अंकित, व्हाट आर यू डूइंग? आप कीजिए सारा वो डिटेल्स, तब हम ऑब्जेक्टिव करेंगे सारे। What you doing like this? Ankit, turn on your video. I'm also nothing. Yes, start reading. Read now. Fixed state. Liquids can follow, they do not have fixed state. Like liquids, gases to follow and do not have a fixed shape. Water can change from one form to another. Okay, very good. अब आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं. You read number one. Number one question. Which of following is solid? You tell me, air, milk or book? Which one? Sir, milk. No, dear. Milk is liquid. Milk liquid है ना? इसे किसी भी कंटेनर में डाला जा सकता है. Yes, book. Yes, book is right answer. You tick. तो आप इसे टिक कीजिए. Yes, sir. Next, you read second number. Which of the following flow? Flow means क्या होता है? बहना. Water या गैस? What is? या both Sir, of these? water. Sir, water. हवा. हवा भी दोनों बहते हैं ना, तेजी से हवा चलता है. तो ठंडी हवा चल रही है आप बोलते हैं ना. सर दोनों both of these होगा. Yes, both of these. Yes, sir. So 3 number. Which of the following spreads all over? स्प्रेड मीन्स होता है फैलना, बहुत तेजी से फैल जाना. तो स्प्रेड कौन होता Sir, है? gas. बुक, गैस. Gas. यस, गैस. गैस बहुत जल्दी से स्प्रेड हो जाता है. जैसे आप नोटिस करो, आपके दोस्त आपका सेंट मारा हुआ रहता है, परफ्यूम, तो आपको भी पता चल जाता है. ठीक है ना? यस और Yes, sir. नाक से. हाँ ना. चलिए, अब इसके बाद क्या? नंबर 4. दिस कैन, यू रीड नंबर 4. This can change from one form to another. Yes, what is can change one from to another? Pain, water or air? Sir, air. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कौन चेंज हो सकता है? तो वो है वाटर. देखो, वाटर कभी कभी चेंज होके आइस बन जाता है ना, जब उसे फ्रीजर में रखते हैं. Yes, sir. और फिर जब उसे गर्म करते हैं तो फिर वाटर बन जाता है. फिर ज्यादा गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ने लगता है. Yes, sir. तो इट्स राइट आंसर इज वाटर. Yes, sir. Yes. Next page. You read B number. Give two examples each of. Solid. You give two example of solid. आप अच्छे से जानते हैं सॉलिड हार्ड होता है. क्या होता है? हार्ड.
तो जो चीजें हार्ड होते हैं उसके 2 एग्जांपल्स देने हैं. सो द 2 एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड आर टेबल, चेयर, बेंच, डेस्क. ये सभी क्या हैं? ये सभी सॉलिड्स हैं. व्हाट इज सॉलिड? तो यू राइट हियर टेबल चेयर, या फिर चेयर भी लिख सकते हैं, डेस्क भी लिख सकते हैं, या टेबल चेयर लिखिए. डन. Yes, sir. नेक्स्ट, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड. लिक्विड का 2 एग्जांपल क्या होगा आप बताइए. यू टेल मी. Sir, liquids का डोंट लुक बैक. आपको पीछे देखने का कोई जरूरत नहीं है. आप खुद से सोचिए कि लिक्विड यानी कि ऐसी चीज जिसको हम किसी भी कंटेनर में डाल सकते हैं आसानी से. water, oil. यस, वाटर, ऑयल. वाटर एंड ऑयल. ओके. थर्ड नंबर, गिव 2 एग्जांपल ऑफ गैसेस. गैसेस का 2 एग्जांपल देने हैं. सो यू राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ गैस. So you know that take in oxygen and take out carbon dioxide. So 2 examples of gases are oxygen and carbon dioxide. Done. 1 minute, sir. You know the spelling of oxygen? Oxygen का spelling जानते हैं आप? No, sir. OXYGEN. Yes, sir. Next, second gas, carbon dioxide. CARBON, carbon. Yes, sir. Carbon. DIO. DIO. XIDE. XIDE. हो गया. डन. Yes, sir. बहुत अच्छा. अब इसके बाद है क्वेश्चन आंसर. ये क्वेश्चन आंसर स्किप कीजिए. चलो आप रीड करो. टास्क, टास्क का ए नंबर लाइन के नीचे है ना जो, वो Sir. Yes, कौन सा? वही वही पेज नंबर 62 में ही है, क्वेश्चन आंसर के नीचे. Identify the things given in the box as solids, liquid or gas. Write these in the correct columns. चलिए बहुत अच्छा. देखो यहाँ पे बहुत सारे थिंग्स का नेम दिया हुआ है, जैसे पेट्रोल, मिल्क, विंड, ब्लड, वुड, पेपर, स्मोक. इन सभी को 3 कॉलम बने हुए हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस. तो जो सॉलिड होगा उसको सॉलिड में लिख देना है, जो लिक्विड होगा उसे लिक्विड में लिख देना है, और जो गैस होगा उसे गैस में लिख देना है. तो चलो 1 बाय 1 करते हैं. पेट्रोल क्या है अंकित? व्हाट इज पेट्रोल? सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो आप लिक्विड में लिखिए पेट्रोल. क्या लिखना है? पेट्रोल. छोटा छोटा लिखना, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है और बहुत सारा लिखना है, इसलिए छोटे छोटे लिखेंगे आप स्मॉल राइटिंग में. डन. 1 minute, sir. Sir, yes, a liquid petrol. नेक्स्ट, नेक्स्ट व्हाट इज मिल्क? मिल्क है ना नेक्स्ट में. Yes, sir. मिल्क इज सॉलिड, लिक्विड और गैस. Sir, liquid. राइट इन लिक्विड कॉलम, लिक्विड बॉक्स. Yes, sir. नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट?
नेक्स्ट Sir, क्या है? wind. तो टेल मी, विंड सॉलिड, लिक्विड और गैस? Sir, gas. राइट इन गैस कॉलम. Yes, sir. नेक्स्ट, ब्लड सॉलिड, लिक्विड और गैस? Sir, solid. ब्लड सॉलिड है, ब्लड मजबूत होता है, Mm. तो ब्लड सॉलिड, लिक्विड और गैस? Sir, liquid. राइट इन लिक्विड कॉलम. Yes, sir, blood. नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? Sir, wood. टेल मी, वुड इज सॉलिड, लिक्विड और गैस? Sir, uh, solid. राइट इन सॉलिड कॉलम, सॉलिड बॉक्स. Yes, sir. नेक्स्ट, पेपर. पेपर इज सॉलिड, लिक्विड और गैस? Sir, paper. Sir, यस यस. gas. ओके, पेपर गैस है? हाँ, पेपर गैस है, आप ही बताइए. solid नहीं है. पेपर इज गैस तो है नहीं, और लिक्विड तो हो ही नहीं सकता. पेपर सॉलिड है, पेपर इज सॉलिड. Yes, sir. नेक्स्ट, स्मोक. Sir, smoke. Sir, gas. गैस, यस, सो राइट इन गैस. Yes, sir. नेक्स्ट, Sir, ketchup. केचप क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस? Sir, solid. केचप मतलब क्या होता है, पता है आपको? No, sir. सॉस जो होता है ना, जो आप खाते हैं. No, sir, gas. अरे चटनी, चटनी गैस है वो. Yes, yes, sir. थोड़ा ध्यान से आप सोचो. केचप, जो सॉस आप बर्गर पे दिया रहता है, बर्गर पे जिसे आप खाते हैं, रेड रेड कलर, या चाउमीन के ऊपर डाला जाता है, वो क्या होता है, गैस होता है. No, sir, solid. वो सॉलिड कैसे होगा? इट्स नॉट अ सॉलिड और गैस, इट्स अ लिक्विड. लिक्विड होता है तभी तो उसे बॉटल में. लिक्विड में तो अब जगह ही नहीं है. लिक्विड में जगह नहीं है तो नहीं बोलोगे क्या? अजीब आंसर है. लिक्विड में जगह नहीं रहेगा तो नहीं बोलोगे, सॉलिड में करोगे. आप बोलिए कि सर जगह नहीं है, बट वो लिक्विड ही है. ये सर सॉलिड का लिक्विड्स खत्म हो चुका है. खत्म हो चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी और बहुत सारे लिक्विड में. तो केचप क्या होगा, लिक्विड होगा. क्या होगा? सर तो कैसे लिखूं मैं? इसीलिए ना मैं बोल रहा था कि छोटे छोटे लिखिए आप. ओके, नो प्रॉब्लम. चलिए, अब आप कॉपी में 3 लाइन ड्रॉ कीजिए. यू ड्रॉ 3 लाइन इन योर कॉपी. यू गॉट इट? नो सर केचप लिख लिया साइड में. नेक्स्ट, ऑयल. बताइए, ऑयल. सर और लिक्विड. राइट. यस सर. पेंसिल. सर पेंसिल. सॉलिड. राइट इन सॉलिड कॉलम. यस सर. नेक्स्ट, रिवर. रिवर्स गैस.
There is gas. How? No, sir. Liquid. Yeah, so write in liquid gas. मिल्क मिल्क में 3 लिख लिया मैं. नहीं Yes, sir. Next, ice cube. Ice cube, sir. Liquid. आइस क्यूब यानी कि ये क्यूब जम Sir, होगा. liquid. नॉट लिक्विड, सॉलिड. वो आइस क्यूब ना बोला गया है. जब आप फ्रीजर में रख देते हैं तो वो वाटर सॉलिड बन जाता है ना. Yes, sir. सॉलिड के बॉक्स में लिखिए. Yes, sir. नेक्स्ट है जूस. जूस इज सॉलिड, Sir, लिक्विड और गैस. sir, liquid. राइट इन लिक्विड कॉलम. Yes, sir. नेक्स्ट है इन्फ्लेटेड बैलून. इन्फ्लेटेड बैलून यानी कि बैलून में हवा भरा हुआ है तो वो क्या होगा? गैस. Yes, sir. राइट इन गैस कॉलम. Yes, sir. Done. Next, Yes, next you tell me. Biscuit. Biscuit is solid, liquid or gas? sir, solid. Right in solid column. Solid. Yes, sir, biscuit. Next, what is fire? Fire is solid, liquid or gas? Sir, solid. Fire means होता है आग. Fire is solid. Sir, तो liquid. Fire मतलब आग. कभी कभी होली में आप देखते हैं होली जलता है, होलिका दहन सर, होता तो है तो liquid होगा. लिक्विड कैसे होगा? जब आप होली में वो जलता है तो आग कितना ऊपर तक जाता है ना हवा में, तो वो तो Yes, sir. गैस है. Sir, gas. वेरी गुड. नेक्स्ट चीज. CHEEC चीज. Sir, solid. यस राइट. सॉलिड. Yes, sir. Cheese. नेक्स्ट चीज. चीज इज सॉलिड. नेक्स्ट परफ्यूम इन अ बॉटल. Perfume in bottle. यस. परफ्यूम इन बॉटल. बॉटल में अगर परफ्यूम है तो वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? Gas. नो नो नो. आप कभी नोटिस करना, बॉटल में परफ्यूम होता है तो ऐसे हिलाएंगे तो लगता है उसमें पानी है, लिक्विड है, तो वो लिक्विड होता है. क्या होता है? लिक्विड. Yes, sir, liquid. यस यस. परफ्यूम इन अ बॉटल, लिक्विड. Yes, sir, 1 minute. अंकित इतना सारा स्पेस बच रहा है आपके पास? Blood, juice or perfume in bottle. डन. No, sir, 1 minute. हैव यू डन? 1 minute, sir.
मुझे नीचे लिखना पड़ेगा आधा। नो प्रॉब्लम, आपने कोई बात नहीं, लिख लीजिए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। यस सर। यू टेल मी, एलपीजी इन सिलेंडर, एलपीजी इन सिलेंडर यानी कि सिलेंडर में एलपीजी गैस रखा हुआ है, जैसे जिससे खाना बनाया जाता है। तो आप बताइए सर ये एलपीजी सिलेंडर। होगा, ये सर ये हो जाएगा गैस। सर ये हो जाएगा गैस। राइट राइट राइट। सर डन। ओके, पेज नंबर next 63, concentrate. Write the first letter of the item in each of the picture to see which word is formed. Read the word aloud. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले वेल का है, फिर एंट का है, फिर टाइगर का, फिर एलिफेंट का, फिर राइनो का। तो एक एक लेटर लिखना है, फर्स्ट लेटर तो क्या बनेगा, W फॉर वेल तो W लिखिए, फिर A तो WA, T फॉर टाइगर तो T, और E फॉर एलिफेंट, और लास्ट में R तो हो गया वाटर, WATER वाटर। यस और नो? सर सबसे पहले डब्ल्यू, फिर ए, और फिर टी, और फिर ई, और फिर आर। Yes, because very simple. Here clearly written, write the first letter of the item. In item का first letter लिखना है, to see the picture. Read the सर word सब aloud. कैपिटल लेटर है। सर सब होगा कैपिटल लेटर है। Yes, all capital letters. यस सर वाटर। Next, second number, you form it. आप खुद से बनाइए। पी ई What is next? Second number, what, which is the word form? पी एन सी आर। सर पेंसिल। PENCIL, pencil. नो सर मुझे पता है स्पेलिंग। So you speak like this, sir. Don't tell me. I know the spelling of pencil. यस सर। Next, can you tell me third number? Which word form here? सर मिल्क। Yes. Milk is solid or liquid? सर सॉलिड। Yes. Milk is solid. Milk solid होता है। हाँ, सर सॉलिड लिक्विड। लिक्विड बोलोगे ना, नहीं तो ऐसा पिटाओगे, गलत गलत बोलते रहते हो।
मैं जानता हूँ लिक्विड होता है, गलती से सॉलिड भुला गया। कैसे तो गलती ये से हो गया? एलिफेंट होता है, एलिफेंट की तरह। तो गलती से हम भी पिटाई करते हैं लो। गलती से हम भी क्या एलिफेंट और राइनो है? Yes, next. Tell me number 4. Which word form here? हाँ, यस सर। नहीं जानता सर। It's so simple. First, what is first animal? सर एलिफेंट, सेकंड राइनो, थर्ड एंड, फोर्थ स्नेक, फिफ्थ एलिफेंट, सिक्स्थ राइनो। सबका सब फर्स्ट लेटर सिर्फ लिखिए ना, अपने आप आ जाएगा। फर्स्ट लेटर, यू राइट द फर्स्ट लेटर। आप फर्स्ट लेटर लिखिए, अपने आप वर्ड बन जाएगा। टेल मी द स्पेलिंग। 1 minute। The spelling. Which word form in number 4? सर ERASER। Eraser. इरेजर। Yes. So why you saying Ankit? Sir, सर I यहाँ don't पे know. राइनो और एलिफेंट है, इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा? अब इन दोनों के फाइट में कौन जीतेगा? अंकित विल वॉन। अरे गैंडा उठा के पटक देगा। मेरी हिम्मत होती नहीं है शेर के सामने जाने की। Okay, next. 5 number. You tell me 5 number. Which verb form in 5 number? सर एयर। Yes, right. Air. Spelling. AIR। Okay, very good. Next. Which word form in 6 number? स्टीम। That's right. What is a spelling? STEAM। Done, Ankit. Each and everything done. इस चैप्टर का सारा कुछ करवा दिए, हो गया ना? यस सर। वेरी गुड बॉय। सारा का सारा ये चैप्टर हो गया, बहुत अच्छा। अब हम आपको कंफर्म कर दे रहे हैं क्वेश्चन आंसर। आज हम चैप्टर नंबर जस्ट अभी आपको सेंड कर दे रहे हैं। क्वेश्चन आंसर ध्यान से सुनिए। आपको हम होमवर्क डेली बताते हैं, पर आप याद नहीं करते हो, ये बहुत ही बैड हैबिट है। देखो, आप व्हाट्सएप ओपन कीजिए, ओपन योर व्हाट्सएप। सर ये लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मैं याद कैसे करूं? ठीक, चैप्टर 7 हाउस एंड क्लॉथिंग। ओपन दी व्हाट्सएप। देखिए, ये क्वेश्चन आंसर चैप्टर 7 का सारा है ना? चलो चैप्टर नंबर 7 यस ओपन सर। करो। पेज बता रहे, पेज नंबर 56। आप बुक में ओपन कीजिए, ओपन पेज नंबर 56। यस सर। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है ना? 4 क्वेश्चन। यस सर। देखो, नंबर 1, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है? आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर पढ़िए, दोनों पढ़ के हमें बताइए। Why does each of us need a house? Answer: each of us need a house to protect itself from heat, cold, rain and dust. Why do we need clothes? We need clothes to cover body. They protect us from heat, cold, rain and insect bites. What are कंटिन्यू। व्हाई यू स्टॉप क्यों हो गए?
Ankit, I am not listening your voice clearly, and your face not looking. Ankit, अभी खिलाएंगे तो नहीं करूँगा। सर वो व्हाट्सएप कोई ऐप ओपन होता है ना तो वीडियो मेरा ऐसे क्लोज हो जाता है, लेकिन मैं वीडियो ऑफ नहीं करता हूँ। okay, so you read once again. सारे क्वेश्चन को रीड कीजिए. It's very good. मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करूंगा, बैक करता हूँ फिर वॉइस नहीं आएगा। One time. No. No, my dear student, you read the answer one time because I will tell you how to learn. Why does each of us need a house? Answer: each of us need a house to protect itself from heat, cold, rain and dust. Why do we need clothes? We need clothes to cover our body. They protect us from heat, cold, rain and insects bites. What are the two types of fibers? The two types of fibers are natural fibers and man-made fibers. What are the two types of houses? The two types of houses are kacha house and pakka house. Done? You got it? Yes sir. सिर्फ 2 बार. हाँ? सिर्फ 2 बार, 3 बार नहीं पढ़ूंगा मैं. ठीक है. अब देखिए व्हाट्सएप में क्या हुआ. Open your WhatsApp. This message was delete. Yes. अब आपको खुद से लिखना, लिख लोगे. हाँ तो ये क्या है, आप जो अभी ये क्या डिलीट करना था. नहीं आपको खुद से अब लिखना है. लिख लेंगे आप. नो सर. ठीक है. नहीं लिखेंगे तो आप फिर से देखो क्या सेंड कर रहे हैं. जस्ट लुक वन टाइम. आई एम सेंड. चलो देखो, सबसे पहले कॉपी में ये राइट करना है. ठीक है, समझ गया ना. व्हाट इज ये क्या. दिस इज द समरी ऑफ चैप्टर 7. इस सारे को आपको कॉपी में लिख लेना है. पूरे के पूरे. ठीक. यस. आई एम सेंडिंग यू फोटो. नो डोंट सेंड एनीथिंग. कुछ भी नहीं सेंड करना. अभी आप देखो बहुत ही अरेंजमेंट के साथ हम सेंड कर रहे हैं. अभी आप कुछ मत सेंड कीजिए. हाँ. Who is अंकित? अंकित. यस सर. आप तो दौड़ रहे हैं. कहाँ का पिक्चर है ये? सर ये फोटो. यस. अभी बताता हूँ. ये एक और देखिए. ठीक है, दिखाइए हमें. अरे ये कौन लड़का है? हाथ में चाबी लिए हुए लगता है. कार चला रहा है क्या? नो सर, ये बाइक की चाबी है, मैं ही दूं. तो आप बाइक चलाना जानते हैं? सर मुझे तो यस सर, बहुत आसानी से जानता हूँ मैं. एक्सीलेटर कहाँ होता है, क्लच का, बाइक का एक्सीलेटर कैसे दबाते हैं, बाइक का क्लच कहाँ होता है, बाइक का ब्रेक कहाँ होता है, बाइक का नीचे वाला ब्रेक कहाँ होता है, सब जानता हूँ मैं. चला भी लेते हो क्या? मेरा पैर नहीं पहुंचता है ना. और वैसे भी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, वरना धूम से गिरूंगा. यस. ओके, वेरी गुड. जस्ट वेट. आप बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे और आप भी चलाने लगेंगे.
ओके लिसन, बट ये अंकित ये तो ओल्ड फोटो है ना? दिस इज ओल्ड फोटो। ओल्ड मीन सर? पुराना पुराना। यस सर, ओल्ड फोटो है, तब मैं छोटा था। यस, फ्रॉम वेयर यू क्लिक दिस फोटो? आप ये फोटो कहाँ खींचे थे? कैन यू टेल मी? योर ग्रैंड मदर हाउस, अंकल हाउस, एट सर योर ये फोटो विलेज? बबुड़वन यानी नानी गांव का है। नानी घर का? यस। यस सर, और ये नाना जी के बाइक खिंचा भी है। ओके ओके, so you speak like this, sir. This photo from my grandmother's house, grandmother's village. सर Yes, अब देखिए अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन कीजिए। yes, yes. Huh? No, 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 no. अब तुम डिलीट भी कर दोगे तो मेरे पास ही रहेगा। अंकित, ये क्या किए हो? अंकित, यस सर। listen. What was your main things you have to done? Okay, okay, very good. I know that you are looking so cute. Really, you are so cute, boy. Yes, really, you are looking so cute. Can I send you something? Ankit, यस Ankit, सर। can I send you something? यस सर। Yes. Ankit, do you listen my voice clearly? यस सर। Hmm. हम भी कुछ सेंड करें क्या? यस सर, सेंड करिए। ठीक है, send करते हैं। आप पहचान लेंगे ना कौन है? हाँ? अंकित, यस सर। आप पहचान लोगे ना कि कौन है वो? यस सर। ठीक है तो। You know that? सर दिमाग चकरा गया मेरा। दिमाग चकरा गया, समझ ही नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? ये कौन है? पर आप मेरा भी फोटो देखिए। तो ये यही है, सेम टू सेम। ये जो है ना वही ऊपर में भी है। ओके स्टॉप, स्टॉप दिस। ओके यू कंसंट्रेट हियर। चलिए अब फोटो सेंडिंग टाइम ओवर। यू कंसंट्रेट। व्हाट इज? आई एम सेंडिंग यू द फोटो ऑफ चैप्टर नंबर 7। 7 के समरी का हम फोटो आपको सेंड कर रहे हैं। यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। आपको अच्छे से कॉपी में राइट कर लेना है, ठीक है ना? यस सर। यू गॉट? तो लिसन, ध्यान से सुनिए। हम आपको फिर से सेंड कर दे रहे हैं क्योंकि बार बार आप भूल जाते हैं ना। तो हम फिर से, अभी आप कुछ मत सेंड करना क्योंकि आपके पास रहेगा होमवर्क। नहीं तो फिर से तुम भूल जाओगे और बोलोगे सर आप तो कुछ सेंड किए ही नहीं थे। इसलिए बिल्कुल आप कुछ भी नहीं सेंड करेंगे। ध्यान से आप देखिए क्या क्या करना है। यू हैव टू राइट दिस समरी ईच एंड एवरीथिंग इन योर कॉपी। इन सारे को आपको कॉपी में लिख लेना है, अच्छे से लिख लोगे? यस सर।
एंड ऑल्सो क्वेश्चन आंसर। आपको बहुत सारा वर्क है कल, ठीक है। You write all the summary of chapter number 7 in your copy and learn, and question answer also learn, क्योंकि इस बार जो एग्जाम होने वाला है ना, मेरा बात सुन रहे हो आप? सर मैं बोला था डे आफ्टर यस्टरडे, नो सर डे आफ्टर टुमारो। यानी कि संडे को ना। नो प्रॉब्लम, डे आफ्टर टुमारो नहीं, संडे को टेस्ट होगा इस चैप्टर का। ओके, आई विल टेक यू द टेस्ट ऑफ चैप्टर। नॉट संडे, नो सर, नॉट संडे, फ्राइडे। फ्राइडे इट मीन्स टुमारो। ओके ओके, सैटरडे, सैटरडे, टुडे इज वेडनेसडे, डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे। ओके ओके। तो फ्राइडे को हम टेस्ट लेंगे चैप्टर 7 का। यू राइट दिस समरी एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 7। यू राइट इन योर कॉपी एंड लर्न, ओके। एंड ऑल्सो आई एम सेंडिंग यू 5 sentences, हिंदी इंग्लिश sentences. You write in your conversation copy. One day I will check your conversation copy. हम एक दिन कॉन्वर्सेशन का कॉपी चेक करेंगे। सैटरडे को सारा का सारा कॉन्वर्सेशन कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश सेंटेंसेस। टेल मी, कैन यू कंप्लीट ऑल? सर लेकिन पीछे वाला ने लिखा है माय बैक पेजेस इज फुल। व्हाट इज, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड अगेन। मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरा बैक पेजेस फुल हो चुका है। मतलब पूरा आपका कॉपी फिल हो गया है कॉन्वर्सेशन का? सर बैक पेजेस भर चुका है, मतलब कन्वर्सेशन कॉपी का पीछे वाला पेज था वो भर चुका है पूरा। हाँ तो आप दूसरे पेज में लिखिए ना, दूसरे। 1 minute सर। Stop. So you got it. This is summary and question answer are already sent on your WhatsApp. You have to write and also learn. For example, like this, I will ask you tomorrow. हम कैसे पूछेंगे? Number 1, why does each of us need a house? So you give the answer. Each of us need a house to protect itself from. What you talking? Stop. I am not listening anything. Listen, I will ask tomorrow like this. Number 1 question. Why does each of us need a house? हम सभी को घरों का जरूरत है। तो आप बोलेंगे need a house to protect itself from heat. Second number, why do we need clothes? We need clothes to cover our body. Got it? Like this. You have to learn all the question. कर लेंगे ना याद? करोगे ना? यस सर। नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा कल, ठीक है? यस सर। हाँ, और अगली बार टेस्ट लेंगे ना, उसमें क्वेश्चन आंसर भी लिखना होगा कॉपी में और लिख के सेंड करना होगा। सर क्वेश्चन आंसर लिखना होगा? हाँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा कॉपी में और सेंड करना होगा, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव भी होगा। और आप तो बोले थे ऑनलाइन होगा। हाँ तो ऑनलाइन होगा, उसमें दोनों मिक्स होंगे, क्वेश्चन आंसर ऑल्सो, ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, बोथ। ये कौन सा है? अच्छा So ठीक है that's सर। why it is very important to learn the question answer. I am sending you the sentences. Tomorrow you learn also. I will ask firstly you sentences. Now your time over. Bye. बाय सर।